Hello and very warm welcome to all of you, the viewers of the Lok Sabha television. Wish you all the very best for Diwali. Today we are going to take a very pertinent topic. As we know that since last couple of weeks, one of the most persistent news in the media has been about the air pollution in Delhi and the whole of the Indo-Gangetic Plains. In fact, it has become annual phenomena. When October onwards, Delhi and the NCR and the most part of the North India start waking up to a very grey morning as smog takes over the sky. And the input of the pollutants from the various things are to blame, but every day one gets the data as the air quality inches closer to the levels of poor, to bad, to severe, to emergency level, and to even hazardous, and many more. Air quality monitoring stations in various parts of the cities in Delhi keep telling us data. So this is a very complex phenomena. No one reason can be entirely blamed. To understand this very tricky situation and phenomena, which comprises variety of factors, but a common man is told that the primary reason of this mess is the intentional burning of the stubble by the farmers of grains like paddy and the wheat in various parts of Punjab and Haryana, which creates a huge smoke, and that smoke travels towards Delhi and northern part of India and neighboring areas as well. And the second reason is told the use of firecrackers during Diwali. The smoke which comes from Punjab and Haryana causes the apocalyptic blanket of smog and camouflage the sun from the sky and smudges the various landmarks of the city from view, is being told as a definitely reason. But without getting into the bottom of the problem, the knee-jerk reactions come from the government and Supreme Court, like halting and the putting restrictions of the sale and the use of the firecrackers and putting challan and the fine to the farmers of the Punjab and Haryana. Though crackers do cause pollution to the extent of the adding PM, that is a particulate matter, to the air, but they add no poison to the air, as many in media report. But interestingly, a study conducted by IIT Kanpur a couple of years ago, which did a chemical analysis to identify the source of all PM and also captured the percentage contribution of each source, did not even list fireworks as a contributor of any significance. However, this definitive report by IIT showing almost negligible impact of the firecrackers on pollution was dismissed as a report, which perhaps was not successful in capturing the effect of the crackers on pollution. So this is a situation, and but as we keep getting the news about the cause of this thing, and closer analysis also found by the faulty and questionable. Now the next is the Supreme Court committee also formed to look into the effect of the pollution during Diwali on human health after a comprehensive study found no adverse effect on the human health as well. And the report of this committee, however, was misinterpreted as one which reported great damage to the health due to the misunderstanding of the concept of the what we call the statistical significance. And last but not the least, most surprisingly of all, far from then, countries like England, which have some of the most stringent environmental laws in the world, are found to be giving additional concessions to burst crackers on the festivals like Diwali. So this raises quite pertinent questions like, if firecrackers are to blame, then what about the choking of a city like Lahore, which also becomes a gas chamber during this time, and no one uses firecrackers there, as we know that, as Diwali, because Diwali is not celebrated in Lahore. So why a city like Lahore gets choked? But during this time, if you read newspaper, listen radios and watch TV news, everyone is billowing out the same trite and very cliche message and readouts like, don't use firecrackers, and appeal to the farmers not to burn stubble. In fact, so what are the reason? And some people in the recent years have done remarkable research and shown the quite different stories as well to the common people, and that shows that there is a very little connection in firecrackers to the cause of air pollution in northern parts of India. So I've been joined by three distinguished panelists from various parts of the world, from Delhi, from Hyderabad, and from US. Let me introduce you first. My first guest is Mr. Ashish Naredi, Senior Associate, Center for Integral Research, Hyderabad. Very warm welcome to the show, Ashish. Thank you, it's my pleasure. And my second guest is Mr. Viresh Malik, who's a writer and observer. He has been ex-techie and ex-seafarer as well, and he has been a media guy as well. I mean, I've dealt in the media as well. Very warm welcome to the show, Mr. Viresh Malik, to you as well.
Thank you. My third guest is Mr. Arvind Kumar from US. Mr. Arvind Kumar has been a columnist and whose article, and he has been a discoverer of this what we call a myth, and he wrote a detailed article in Sunday Guardian about the trend. I mean, normally the pattern in which the farmers of Punjab and Haryana normally go for the crops like paddy and the wheat, and what are the reasons. And in fact, his article was taken quite well by the common person, and in fact Monsanto had to come for the rebuttal, but it had a very little finding in that. Very welcome on the show, Mr. Arvind Kumar. Appreciate you joining from US because there is a time difference as well. I would be beginning with you, Mr. Arvind Kumar. If you are getting my voice clearly, can you tell us, I mean, in brief about your article, what you wrote in the Sunday Guardian? What is the main reason of this situation in northern parts of India, especially in Delhi and other parts of the area? The stubble burning is told is the main reason. But in your article that you wrote the various things, can you tell our viewer about this thing? Okay. First, the big issue is smoke in Delhi capital. There used to be no smoke in Delhi region. It used to be in Punjab, but only in recent years. 207 के पहले वो नहीं था, धुआं पंजाब में ही रहा था, और 10 या 12 साल में आ गया है, धुआं दिल्ली में आ गया है. इसका कारण क्या है? क्योंकि पंजाब में एक कानून बना गया है, एक ग्राउंड वाटर लॉ, ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन लॉ. जून के पहले चावल नहीं उगा सकते हैं, चावल नहीं, you cannot plant rice before June. So now when the farmers burn and harvest, Arvind, there is a problem in the connection, and I'm so your audio is breaking, and the video as well. I come to you in a short while, but Ashish, I come to you now. Your first comment, your first take on about this entire what we call first the mess and the narrative as well. Yeah. See, if you ask me, and I've done a detailed research on this subject, gone through all the Supreme Court judgments, studied all the reports which have been presented in the court, I would point blank say that crackers have been made a scapegoat for the entire pollution ills of Delhi and even India. You could, in another ways, you could look at it this way, that crackers have been killed in a fake encounter for no guilt, no fault of theirs. I understand that I'm making a very strong statement, but let me back it up with data. Now, the way the narrative has been built on crackers and against crackers, it's almost as if crackers are synonymous with pollution. However, nobody looks at the facts which have been presented in the Supreme Court itself. Okay. And Supreme Court, when it delivered, Supreme Court has delivered 4 judgments in this case. The second judgment was delivered in September 2017. In September 2017, Supreme Court itself said that there is no definite data available to link crackers to pollution. Hence, the ban is too radical and not advisable. Anyone who has doubt... Can you repeat? I mean, the last line. So the ban is not? Not advisable. Advisable. Okay. Okay. Yeah. Okay. So, and Supreme Court that time lifted the ban. Okay. Right? But interestingly, within a month of this judgment, the same Supreme Court came up with another judgment in which it said that there is definitive proof of crackers being linked to pollution. Hence, they banned it again. And what was the reason? And what was their, judgment?
Correct. So you see, when you look at the details, no new data was presented to the Supreme Court. The only data presented was an IIT Kanpur report, Yeah. which very clearly says that pollution by crackers is almost equal to zero, right? However, the reason why this bench gave a different view or took a different view, I hope I'll not be hauled up for contempt, but because the bench itself changed. Okay. There was no other change in this other than the bench. And Okay. this, again, mind you, this is not an allegation that I am leveling. This is the finding, and these are the words of the Supreme Court itself. That too, of the October bench or the new bench which banned crackers. If I can quote from that judgment, it said that the petitioners in this case have very clearly attempted to change the bench. Maybe instead of change, they would have used some other word, but their meaning is that they very clearly attempted to change the bench. In normal circumstances, we would not have condoned this behavior. However, looking at the issue, we are letting it go. Okay. Right? Okay. So, Okay. to summarize in a sentence, crackers do not cause pollution. Whatever little pollution they cause it is almost equal to zero as per all scientifically analyzed and researched reports. And the Supreme Court itself held the same view in September 2017. However, it changed its view after September, and the reasons I just told you. Ashish, I can tell you, I mean, with a sense of disbelief, I mean, you are saying है कि फायर क्रैकर्स से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता, या ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, कुछ परसेंट पीएम का होगा. ये आदमी भरोसा ही नहीं करेगा अगर दिल्ली में कहीं सुने तो, क्योंकि पिछले कुछ सालों में दे हैव बीन मेड टू बिलीव दैट मेन रीजन एंड मेन विलेन इज द फायर क्रैकर, और सेकंड है वो जो पराली जलाते हैं किसान. ये एक ऐसा नैरेटिव है जिसमें कि हर दिल्ली वाला भरोसा करता है, हर चैनल, हर रेडियो स्टेशन, हर अखबार यही बात बोल रहा है. बिल्कुल, यही जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे अचंभा हुआ कि भाई ये मुझे क्या मिल रहा है इस रिसर्च में. तो मैंने कई लोगों से इसके बारे में पूछा और सबने बताया कि नहीं, आपके तथ्य सही हैं. और एक और बात अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने इस पर कल ही एक 21 पेजेस का पूरा डिटेल्ड रिसर्च डॉक्यूमेंट रिलीज किया. और जैसे ही वो नेट पे गया, मुझे कई जगह से एनवायरमेंटल साइंटिस्ट्स के मैसेजेस आए कि आपकी रिपोर्ट सही है. एक इसमें से आई मुझे CEEW करके एक संस्था है, सेंटर फॉर एनर्जी एंड कुछ उसका नाम है, CEEW, बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली. उन्होंने एक और रिपोर्ट मुझे भिजाई. जैसे मेरे रिसर्च पेपर में सिर्फ IIT की रिपोर्ट दी गई थी, बट इस सेंटर ने मुझे 3 रिपोर्ट और भिजाई. तो लगभग 4 रिपोर्ट हैं. और चारों के चारों ने दिल्ली में रिसर्च करके बताया है कि द परसेंटेज ऑफ पोल्यूशन or the particulate matter contributed by crackers to Delhi pollution is less than 1 as per all 4 reports. Okay. Almost negligible. Okay. मैं आपको अभी रोक रहा हूँ, और आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई है. मैं आई गो बैक टू अगेन मिस्टर अरविंद कुमार बिफोर आई मूव टू मिस्टर वीरेश मलिक. अरविंद, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो इफ़ यू कैन टेल, आई मीन यू आर टेलिंग कि 2007 से पहले किसानों ने, यानी कि पंजाब और हरियाणा के किसानों ने जो ये पराली जलाते थे, वो धुआं पंजाब में रहता था क्योंकि वो जो पैटर्न था वो एक अलग था. और उसके बाद जब जैसे कहा गया कि चावल खेतों में जून के महीने में लगाए जा सकते हैं, मतलब मॉन्सेंटो के द्वारा जो कानून बना पंजाब में, उसने एक पैटर्न को चेंज किया. इफ़ यू कैन टेल अस टू आवर व्यूअर्स इन हिंदी एज वेल. नहीं, मैं आपको रोक रहा हूँ अरविंद. देयर इज अ प्रॉब्लम इन ऑडियो. वी कांट हियर यू. आई कम बैक टू अगेन. लेकिन अरविंद की कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि उन्होंने आर्टिकल लिखा था संडे गार्डियन में, वो जो कि नेट पे भी अवेलेबल है, इसलिए हर इंसान को पढ़नी भी चाहिए कि उन्होंने किस तरह से पूरा डिटेल रिसर्च किया. और ये कहा कि जो कानून एक बार फिर कोशिश करते हैं. अरविंद, अगर आप मेरी इस बात सुन पा रहे हैं तो जरा दोबारा कोशिश करें. ओके, हम बाद में जाएंगे, अभी नहीं कोशिश.
वीरेश मलिक हमारे साथ हैं। वीरेश, आप इस पूरे मतलब इशू को और ये जो नैरेटिव चलता है इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, सबसे पहले तो मेरा तजुर्बा जो है ना वो ग्लोबल है, इंडियन है, टॉप डाउन भी है और पैर मेरे जमीन पे भी हैं। शौक से मैं वेस्टर्न घाट्स में और बिहार के जंगलों में घूमता हूँ और रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली में रहता हूँ, इसलिए यहाँ की हवा के साथ मुझे रहना पड़ता थोड़ा है। समस्या है। ओके। और पहले मेरे को दम्मा था, वो दम्मा कैसे क्लियर हुआ वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं इसको देखता हूँ कि ये एक तरीके से दो कम्युनिटीज हैं, एक है फार्मर्स और दूसरे हैं जिसको हम कहते हैं इंडिक सिविलाइजेशन। रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। Okay. इन दोनों को क्रिमिनलाइज कर रहा है जा रहा है। फार्मर्स एंड नेटिव्स आर बीइंग क्रिमिनलाइज्ड। इनको क्यों क्रिमिनलाइज किया जा रहा है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर होता है, रस्सी लेके आदमी निकलता है, जो गला अवसर मिलता है उसके मेजरमेंट के साथ आदमी फंस जाता है। मुद्दे की बात यह है कि पटाखे करते हैं पॉल्यूशन, लेकिन पटाखे एनसीआर और नॉर्थ इंडिया और गैंजेटिक बेल्ट के पॉल्यूशन के बहुत छोटे परसेंटाइल कारण है। कारण बहुत सारे और हैं जो कि मैं पिछले 40-50 साल से नॉट जस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में बट एशिया और सब सहारन अफ्रीका जिसको कहते हैं उन देशों में भी देख रहा हूं वो कैसे सोल्यूशन कर रहे हैं। सिर्फ एक मुद्दा लूंगा। हम अपने घरों को पेंट करते हैं इंडिया में, एक्सटीरियर और इंटीरियर, उसमें आज तक जिसको टर्पेटाइन कहते हैं ना, जो कि करीबन 20, 25, 30% बेंजीन होता है, मोटर स्पिरिट पेट्रोल, उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप रईस इलाकों में जाएं, जैसे डिफेंस कॉलोनी जहां मैं रहता हूं, तो जो विदेशी किराएदार आते हैं ना, वो पहले ही कहते हैं भैया हमें वाटर बेस्ड सॉल्वेंट एक्सटीरियर इंटीरियर पेंट का घर चाहिए। ये भी नहीं, पड़ोसी का भी घर हमें वही चाहिए, नहीं तो हम किराए पे नहीं ले रहे हैं। हम वाटर बेस्ड सॉल्वेंट पेंट्स इंडिया में क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि वो हर 2-3 साल उनको करना पड़ता है। ओके, ठीक है। लेकिन प्लास्टिक का लगा दिया, 20 साल का पेंट लगा दिया, पैथोजेंस क्या है वो एक बात है, उसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड जो रिलीज हो रहा है हवा में, जो मैंने कहा बेंजीन, बिल्कुल कच्चा बेंजीन आपका वेपर बन के रिलीज हो रहा है, उसकी आज तक किसी ने स्टडी भी नहीं की है। ठीक है जी, ये एक कारण है। एक और कारण मैं कहूंगा, हमारे यहाँ मेंटेनेंस ऑफ इंजन्स, सिर्फ मोटर व्हीकल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरेटर हो गया, पावर प्लांट हो गया, इसमें बड़ी एक सिंपल चीज होती है, उसको कहते हैं एयर फिल्टर। मैं हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में घूमता हूं, मैं देखता हूं, ड्राइवरों से पूछता हूं कि भैया एयर फिल्टर लास्ट कब चेंज किया था? कहते 3 महीने पहले चेंज किया था। यहाँ पे पूछो, कहते जी वो काम कंपनी का है। बुरा मत मानिए, बट दैट इज हाउ इट इज। मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स नॉर्थ गैंजेटिक बेल्ट में जो है सो है, वो सबको देखने को मिलती है, जैसे ही वो दिल्ली से बाहर निकल के साउथ जाए या नॉर्थ ईस्ट जाए। ठीक है जी। तीसरा, एनसीआर दिल्ली का एक बड़ा स्पेशल प्रॉब्लम है। दिल्ली एक स्टेट है, एनसीआर का कोई मतलब ही नहीं है, बगल में यूपी है, बगल में हरियाणा है, थोड़ी दूरी पे राजस्थान और पंजाब है, सबके अपने अपने ट्रांसपोर्ट लॉज हैं। इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट को उन्होंने एक रेवेन्यू जनरेटर बना दिया है, जो कि अंग्रेजों के जमाने से था। डोंट लेट द नेटिव्स ट्रैवल। अगर नेटिव ट्रैवल करेगा तो दंगा फसाद करेगा, इसलिए उसको दबा के रखो, इसलिए उसके पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लगा दो परमिट और फीस। और आज की डेट में दिल्ली में आपको मालूम है शायद या नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि डीटीसी बस हो गई या कोई यूपी रोडवेज की बस होगी, उसके ऊपर एक ग्रीन सेस लगता है, जो कि छोटा नहीं है, हजारों में है, और वो सीएनजी पे चल रही है, 50 लोगों को लेके आ रही, कभी कोई 150 को भी लेके आती छत पे। और एक एसयूवी जो डीजल पे चल रही है, वो उससे ज्यादा कितना गुना पोल्यूशन कर रही है, वो फ्री निकलती है, क्योंकि वो प्राइवेट व्हीकल है। किसी भी आप टोल पॉइंट पे या स्टेट बॉर्डर, इंडिया में हम लोग अपने स्टेट के डिफरेंशियल पॉइंट्स को बॉर्डर कहते हैं, सैडली, वहां पे खड़े रही तो 50 एसयूवी जा रहे हैं फ्री, सुर 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 डीजल पे। एक सीएनजी वाली बस है ना, 150 लोगों के साथ खड़ी है, वो बेचारा नकद निकाल के पैसे दे रहा है। ठीक है। तो ये सारे कारण हम हल नहीं करेंगे। ठीक है जी। रही बात पटाखों की, पटाखास आर नॉट अ न्यू फिनोमिनन। कहते हैं लोग कि दिवाली के टाइम राम जी जब आए थे तो पटाखे नहीं थे, बिल्कुल सही बात है, पटाखे इवॉल्व हुए गन पाउडर के साथ। गन पाउडर कहाँ डिस्कवर हुआ? इंडिया में। ठीक है जी, बड़ी कंपनी है, उसका नाम है डुपॉन्ट। वो इंडिया से टेक्नोलॉजी लेके, LEIL करके साहब थे, लेके दौड़े थे, फ्रांस होते हुए झंडा बदल के अमेरिका पहुंचे थे। येल यूनिवर्सिटी फॉर्म की थी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गन पाउडर वाज इन्वेंटेड इन चाइना एंड इंडिया साइमल्टेनियसली, लेकिन उसका कंट्रोल कैसे करते हैं वो इंडिया में किया था। ठीक है। वो कैसे किया था? आतिशबाजी से। शिवाकाशी ऐसे ही फेमस नहीं हुआ था। शिवाकाशी सबसे पहली जगह है जहां पे उन्होंने सीखा कि गन पाउडर को ऐसे कंट्रोल करते हैं विदाउट ब्लोइंग योरसेल्फ अप। ओके। अब
ओके, मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूँ। गन पाउडर कॉजेज पोल्यूशन, बट हमारे फेस्टिवल इवॉल्व करते हैं। आपको कौन कहता है गन पाउडर से करो? मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था वैंकूवर बीसी में, वहां भी काफी हिंदू, पंजाबी, सिख, चाइनीज है। कहता है 2% हमारा फायरवर्क्स, जो कम्युनिटी फायरवर्क्स होता है, वो आतिशबाजी होता है। उसके बाद 98% लेजर, पायरोटेक्निक्स। किसने रोका है आपको? एशियाड के टाइम में हमने किया था। These are my points. Okay, ठीक है. I mean, we are going to take a short break and we'll come back. We'll also try to connect Mr. Arvind Kumar as well. I mean, who has come out with this Monsanto-driven law, which is the main reason for this change in pattern of the farming in Punjab, and that causes this smoke, especially in the Punjab. And we'll try to sort out this snag in audio and visual as well. We'll come back and we'll also discuss about the various things that especially the agenda of corporates and other institutions to defame Diwali and the Hindu festivals. Welcome back. We are discussing the politics of pollution. What are the reasons that causes pollution, and what is the main agenda behind putting the blame to the firecrackers and entire blame on farmers of the Punjab and Haryana as well? And we were discussing about this to Mr. Arvind Kumar. Mr. Arvind Kumar, अगर आपको आवाज़ मिल रही है, एक बार फिर कोशिश करते हैं. आपने बताया कि 2007 तक तो ये पैटर्न नहीं था पंजाब में, लेकिन मॉन्सेंटो ने जो कि वहाँ पर आकर कानून बदलवाया, जिसके चलते जो धान की फसल जो होती थी, जो पैडी क्रॉप्स थी, दैट गॉट डिलेड बिकॉज ऑफ दैट लॉ. ये क्या यही एक रीज़न है, और इसने किस तरह से पूरा एक पैटर्न चेंज किया और इस मैस को क्रिएट करने में एक तरह का भूमिका निभाई? करेक्ट. 2007 के पहले सितंबर में जलाते थे खेती को, और तब मॉनसून में हवा का दिशा दूसरी दिशा में थी, और दिल्ली पर नहीं आ रही थी ये धुआं. So what happened in 2009 is when they passed the law, but 2007 and 8 they actually, the Punjab government was offering incentives, and they had a government order to grow GMO cotton, BT cotton of Monsanto. So they want us to grow, they want the farmers to grow maize, and they want the farmers to grow cotton, but not rice until June. Okay. So the burning season is now in October and November. Okay. So that is the big problem. Okay. Or what happens in November is the wind direction is towards Delhi, and you have smoke. Okay. बिल्कुल. तो जो अरविंद बता रहे हैं वो यही बात कि किस तरह से मॉन्सेंटो ने दरअसल एक पूरा का पूरा कानून बनवाकर इस पूरे पैटर्न को बदलवाया. उनका जो मुख्य बात है, जो कि अरविंद ने अपने आर्टिकल्स में भी लिखा है और जिसको लेकर दुनिया में काफ़ी कुछ इसका डिस्कशन हुआ, कि दिल्ली में प्रदूषण करने के पीछे जो मुख्य वजह मानी जाती है कि किसानों के द्वारा पराली, जो कि पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, वो अगर जलाते हैं तो उनका धुआं आता है. जब यही किसान मार्च और अप्रैल में अगर धान पैदा करते थे, तो फिर उनकी जो कटाई होती थी वो करीब करीब सितंबर के आसपास होती थी, और उस दौरान हवाओं का जो पैटर्न है, यानी हवाओं के बहने की जो दिशा है, वो दिल्ली की तरफ नहीं होती थी, वो वेस्ट ऑनवर्ड्स होती थी. तो लिहाजा वो जो धुआं है वो रुकता नहीं था, और ये सदियों से, दशकों से चला आ रहा था. ये किसान आज का ये स्टबल बर्निंग नहीं हो रही है, ये बहुत समय से हो रही है. लेकिन मॉन्सेंटो ने जब पंजाब में कानून बनाया कि धान की पैदावार अगर मार्च में होगी तो ट्यूबवेल से जो सिंचाई होती है उसके चलते ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाएगा, लिहाजा उसको बैन कर देना चाहिए. और वो आप उसको शिफ्ट करके ले गए जुलाई और अगस्त में. इंटरेस्टिंग बात इन्होंने अपने आर्टिकल में ये भी लिखी है कि पंजाब का कानून मॉन्सेंटो की मदद करता है, क्योंकि किसानों को सरकार ने चावल के बजाय कपास या फिर GMO का मक्का उगाने के लिए कहा. उन्हें कपास और मक्का दोनों के लिए मॉन्सेंटो से बीज खरीदना होगा. ये इस बात की वो थी. इस कानून का कारण ये माना गया कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसमें 1 किलो कपास उगाने के लिए तकरीबन 10,000 लीटर पानी लगता है. ये सच्चाई है. जबकि धान उगाने के लिए, यानी कि चावल उगाने के लिए 1 किलो में तकरीबन 2,500 लीटर लगता है.
तो ये इसकी कोई फाइंडिंग नहीं थी। ये इन्होंने अपने आर्टिकल्स में लिखा और किस तरह से फिर मॉन्सेंटो ने इस पूरे गेम को बदला और जिसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं और उसका सारा ब्लेम जा रहा है पंजाब के किसानों पर। मैं आशीष आपसे भी कहूँगा, आपने चूँकि अपने जो फाइंडिंग में अपनी रिसर्च में ये माना कि ये जो दीपावली पर जो फायर क्रैकर्स का को ब्लेम करना है, ये इसका कोई फाइंडिंग नहीं है। इसके पीछे का क्या मतलब एजेंडा या क्या इंटेंशन क्या लगता है आपको? देखिए, एजेंडा इसके पीछे सारे देश को तो समझ आ रहा है, पर जाने क्यों जो लोग इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो मायने रखते हैं, उनको पता नहीं क्यों समझने नहीं आ रहा। क्योंकि आप अगर इसी केस की बात ले ले, ये जहां से ये पटाखों पर सारे बैन की बात चालू हुई थी, ये पिटीशन डाला है 3 नवजात शिशुओं ने। नवजात शिशु भला कोर्ट में कैसे पहुंच गया बताइए? उसके तरफ से उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता कोर्ट में आए हैं और पहली सुनवाई में श्री अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और के वेणुगोपाल, जो कि जब एडवोकेट जनरल नहीं थे, अटॉर्नी जनरल नहीं थे, ये 3 बड़े बड़े दिग्गज और कई बड़े बड़े मान्य लोग, पहली सुनवाई में 3 नवजात शिशु को इतने 3 बड़े बड़े वकील मिल जाते हैं। इसके पीछे क्या रहेगा? फंड्स कहां से आएंगे, क्यों आएंगे? तो ये एजेंडा, इसमें ये मैं जैसे कहता हूं सारे देश को समझ आ रहा है, और ये सिर्फ पटाखों और दिवाली के साथ नहीं है। ये आप देखिए हर हिंदू त्योहार के साथ यही हो रहा है। दही हांडी की हाइट सेट करेगा सुप्रीम कोर्ट, वो भी अनसेफ हो गया, और बकरा काटने में कोई इनको दिक्कत नहीं है। ये सवाल आज जनमानस में हर व्यक्ति पूछ रहा है, पर जाने क्यों जो लोग दिल्ली में बैठे हैं उनको ये दिखता नहीं, और वे इस एजेंडे में और खींचे चले जा रहे हैं। और एजेंडे में भी कैसे खींचे जा रहे हैं मैंने अभी आपको बताया, जबकि कोई तथ्य नहीं है। अगर सच्चाई हो तो जनमानस स्वेच्छा से उसको स्वीकार करेगा, पर इसमें जब सच्चाई ही नहीं है तब इसको क्यों लोग स्वीकार करें? इसका भरपूर विरोध करना चाहिए साहब। मैं तो बहुत जोर से विरोध कर रहा हूं, और मेरे ख्याल से इसको सबको विरोध करना चाहिए, क्योंकि एक बात याद रखें फिर से, पटाखे प्रदूषण नहीं फैलाते, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने भी माना था एक समय तक। उसके बाद क्यों बदल गया वो भी मैंने आपको अभी बताया है, और इसकी और डिटेल मेरे वो रिसर्च पेपर में भी दी हुई है। मैं यहाँ यही सवाल का जो एक्सटेंशन है वो वीरेश मलिक के पास से जाता हूँ। वीरेश, चूँकि आपने भी पूरा का पूरा जो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देने की कोशिश करी, और फिर जो इंटरनेशनल एक तरह का ट्रेंड रहा है, आपने सजेशन दिया कि ठीक है अगर एक कॉजेज़ है तो बहुत माइन्यूट है, लेकिन उसकी जगह एक तरीका हो सकता है। लेकिन ये नी-जर्क रिएक्शंस के पीछे की वजह आपको क्या लगती है कि पूरी तरह बैन कर दो, कोई नहीं जलाएगा, बच्चों को पुलिस पकड़ेगी? देखो, किसी भी चीज को ना दुनिया में पूरी तरह से आप बैन नहीं कर सकते हैं। प्रश्न था कि इसका एजेंडा क्या है। या हर चीज के पीछे एजेंडा जरूर होता है, और एक इंग्लिश में कहावत है, फॉलो द मनी। ओके, फायर क्रैकर को बैन करने का एजेंडा क्या होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का? देखिए, अगर आज की डेट में हम इतने बिलियन रुपीस पटाखों पे खर्च रहे हैं, तो शायद वो पैसे शराब में या सॉफ्ट ड्रिंक्स में या ऐसी चीजों में ज्यादा बेहतर खर्चे होंगे। एक तो ये एजेंडा होता है सिंपल सा। दूसरा जो मैं घड़ी घड़ी कहता हूँ, टेक्नोलॉजी ऑफ गन पाउडर, फायर क्रैकर्स, उसके बाद आर्म्स एंड एमुनिशन, ये है ना, ये हमारे इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देशों में, स्कूलों में सिखाया जाता है, कॉलेजों में सिखाया जाता है कि भैया कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन क्या चीज होती है। कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन से हमारे गाड़ी का इंजन चलता है। लोगों को मालूम नहीं है कि गाड़ी के इंजन 1000 आरपीएम का मतलब ये होता है कि 6000 बारी अंदर, 6000/4 24,000 बारी एक्सप्लोजन हो रहा है सिलेंडर के अंदर। ये सिखाया जाता है, ये होता है एक्सप्लोजन। इसकी एजुकेशन हमारे देश में 0 की तरफ पहुंच रही है। दूसरा एजेंडा है कि आप डिमोरलाइज कर रहे हैं एक पूरे सिविलाइजेशन को, कि भैया आपका जो त्योहार है बड़ा करके लोग बीमार हो जाएंगे। प्रदूषण का मेन इफेक्ट आपका दिवाली है, और पैदा होए ना होए, ये त्योहार आपका जो है जमीन के नीचे खींच के ले जा रहा है हिंदुस्तान को और इंडियंस को। मैं रिलीजन में घुसना ही नहीं चाहता साहब। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप एक सिविलाइजेशन को दबा रहे हैं, और ये एक बहुत पुराना कॉलोनियल प्रैक्टिस है
कि जहां भी आप जाते हैं ना, उन लोगों को दबा दीजिए, आपका सिस्टम खराब है, आपका कल्चर खराब है, आपके त्योहार खराब, हमारा बड़ा दिन ज्यादा अच्छा है। तो ये दो मेन कैटेगरीज हैं। अगर आप दिवाली पे खर्चेंगे तो आप दिसंबर 25 को बड़े दिन पे खर्चेंगे, ये सबसे बड़ा कारण है। ऑलवेज फॉलो द मनी। नहीं, पर इसमें अच्छा, आपने अच्छी बात कही। और क्योंकि जब ये बात मैं पिछले कुछ सालों में नोट करता था कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग अगर ये लिखते थे कि बड़े दिन यानी कि 25 दिसंबर या 31 दिसंबर को जो फायर क्रैकर जलाएंगे तो फिर अच्छे हैं, लेकिन दीपावली पर बुरे हैं, तो उसको ब्रांड किया जा सकता था कि आप तो बड़े धार्मिक मदान्ध हैं, तासुबी हैं, इंटॉलरेंट होते जा रहे हैं और क्या एक तरह की खराब और गंवार बातें कर रहे हैं। बिल्कुल सही है साहब। अब हम इतने बचपन से, फौजी का बेटा हूँ, क्लब्स जानता हूँ, अपने आप क्लब्स का मेंबर हूँ, हमने अपने त्योहार काट दिए। लोहड़ी मनाते थे, रोक दिया। दिवाली मनाते थे, रोक दिया। होली मनाते थे, सूखी मनाते हैं। क्रिसमस एंड न्यू ईयर एंड रेन डांस जो है ना, बड़ा तगड़ा मनाया जाता है। तो ये थोड़ा फॉलो द वेस्टर्न, फॉलो द मनी, फॉलो द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इसके अंदर आता ही आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पटाखे बजाने चाहिए, आप दिवाली मनाइए, बगैर पटाखे के मनाइए, 5% पटाखे चाहिए चलाइए, लेकिन एक त्योहार तो मनाइए। किसी ने रोका नहीं है आपको, ऑल्टरनेटिव्स हैं। जैसे मैंने कहा, हिस्टोरिकली फेस्टिवल्स इवॉल्व होते हैं। जरूरी नहीं है कि मेरे को गन पाउडर या कार्बाइड मिला के तीली लगानी है। बिल्कुल, तो जरूरी नहीं है कि ग्रीन फायर क्रैकर भी चलाना है। आज में गोवा में क्या, मैं गोवा में भी रहता हूँ, वहां पे जो फेस्ट ना दिवाली का, आवाज खूब करते हैं जोरों से, लेकिन बगैर फायर क्रैकर के। ऑडियो लगे हुए हैं सब वहां पे, एंड इट वर्क्स जस्ट एज वेल। शिगमो कहलाता है त्योहार का नाम। तो सोल्यूशन है, हमें सोल्यूशन लाना है। ये नहीं कि बैन कर दो, भाई घर के बाहर निकलोगे तो हम तुम्हें पकड़ लेंगे। के अंदर बैठ के दिया जलाओ। जो हमारे पता नहीं किस प्रकार के चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली में, जिनको मैं 2005 से जानता हूँ, आरटीआई मूवमेंट में उनके साथ था उन दिनों में मैं, कि घर में बैठो। अरे भैया, घर में बैठे त्योहार के दिन, तो फिर त्योहार होता क्यों? हम वैसे ही पे चिपके रहे जिंदगी भर। तो ये आपका जो है ना, जो एजेंडा है, एजेंडा मेन एजेंडा है, एक पीपल को डिमोरलाइज करने का है। ये हिटलर ने भी बड़ा अच्छा किया था। अगर आप देखें, जूस को बोला कि तुम्हारे त्योहार गलत है, तुम गलत हो, तुम्हारा सब कुछ गलत है, और थोड़े दिनों के बाद जाओ चूल्ही पे बैठ के ओवन के अंदर। तो आई एम नॉट सेइंग दिस इज द, बट डिमोरलाइज करना लोगों को, ये जॉर्ज ऑरवेल जो कि मोतिहारी में पैदा हुआ था, I mean, if one wants to understand, बढ़िया किताबें लिखी। Okay. One wants to understand the basic reason. I mean, follow the money, trail the money. So one will get to know the reason and the real intent. But अनुराग जी, okay, yeah. अगर आप इजाजत दे तो एक दो बातें यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगा। मैं आपके पास आ रहा था, मैं आपके पास आऊंगा, और एक इसके साथ साथ जो आप कहना चाहते हैं वो भी, और जो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है मैं उस पर भी बात करूंगा। लेकिन एक रिएक्शन में जरा मिस्टर अरविंद कुमार से लेता हूं। उनके साथ बातचीत में, और सिग्नल्स का प्रॉब्लम के चलते रही है। मिस्टर अरविंद कुमार, इफ यू कैन लिसन, मॉन्सेंटो पर आर्टिकल लिखने के बाद मुझे पता था कि उनका भी एक रिबटल आया था। उन्होंने आपको काटने की और आपकी फाइंडिंग्स को दरअसल डिनाउंस करने की कोशिश की थी। उनका क्या कहना था और उसका फिर क्या रिएक्शन, रिजल्ट क्या रहा? Mr. Arvind Kumar, can you listen? You are asking me? Yeah, I'm asking you. I mean, your article in the Sunday Guardian about the main villain, I mean, the Monsanto's policy, which caused this entire mess. Monsanto reacted, and in fact, they came out with an article with a rebuttal. But what happened afterward? Okay, see, the purpose of the law is supposed to have groundwater. इसका कारण कानून कहा जाता है कि भूजल बनाए जा सकते हैं, लेकिन 1 किलो कपास उगाने के लिए 10 लीटर की आवश्यकता होती है। 1 किलो चावल उगाने के लिए केवल 2500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। So you see, you need more water for them. It's not right. They're just making up stuff. And the real reason that farmers do the borewell is because the canals have brackish water in them. They have become polluted. The irrigation canals have become polluted. So what is the solution? You have to clean the canals. You help the farmers dispose of the stubble. Okay.
Okay. No, that is the way to go. Diwali is not the reason. The main reason for pollution is definitely smoke. Then it's industrial smoke, vehicular smoke. The Diwali crackers is nothing really. I've spoken to the scientist, the aerosol scientist at NASA here in. ओके। तो जैसा अरविंद कुमार बता रहे हैं कि जो स्मोक पैदा होता है वो चाहे पराली से हो, क्योंकि पराली अब आकर जलती है अक्टूबर नवंबर में, लिहाजा उसके द्वारा जो धुआं होता है, या फिर स्मोक जो कि इंडस्ट्री से निकलती है, जो व्हीकल से निकलती है, वो मेन विलेन है इसके। लेकिन सिर्फ ब्लेम कर देना चूँकि किसानों को एक रीज़न, और फायर क्रैकर्स को बैन करना इस पूरे प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं एक तरह से कहें कि उसके तह तक जाने की कोशिश नहीं है, जो बात आशीष बता रहे थे। आशीष, आप कुछ कहना चाहते थे, और हमने चूंकि बात कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन भी कुछ बताएं कि इसका सॉल्यूशन कैसे, मतलब अगर फायर क्रैकर्स की वजह से प्रॉब्लम नहीं है तो फिर एक आम आदमी क्या समझे, और इसका क्या ऑल्टरनेट आपको लगता है? जी देखिए, मैं यही इसको एजेंडा से ही लिंक करना चाह रहा था। जैसे मैं इसको एक एनालॉजी, एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊं। समझिए, देश में कोई एक बड़ा आतंकवादी हमला हो गया है, और अब हमारी सरकारी जांच एजेंसियों को ये हमला किसने किया वो मिल नहीं रहा है। तो वो क्या करेंगे? अक्सर ये देखा गया है, कहीं ना कहीं किसी निर्दोष को पकड़ के भी गुनाहगार बना के छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वो केस खत्म, किसी को सजा मिल गई, पूरा देश शांत, और असली गुनाहगार फिरता रहता है। तो ये जो पटाखों के पीछे का मुहिम चल रहा है, कई बार ये संदेह होता है कि इसके पीछे ये जो वाकई प्रदूषण फैलाते हैं, कहीं वो तो नहीं है, क्योंकि सारी जनता, कोर्ट, सरकार, सबका ध्यान पटाखों की तरफ चला जाएगा। उस पे वो डिबेट पे डिबेट करते रहेंगे, सोशल मीडिया में लड़ते रहेंगे, और पीछे जो प्रदूषण फैला रहे हैं, जैसे कि व्हीकुलर एमिशन, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो रोड पे डस्ट होता है, सॉइल डस्ट होता है, और इंडस्ट्रियल एमिशंस, उसके तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। राइट। अगर मानिए कि ध्यान जाए, जैसे एक स्टडी ने बोला कि रोड के ऊपर जो लूज मिट्टी पड़ी होती है, सॉइल डस्ट, वो भी एक बहुत कारण है। तो अगर उसके ऊपर ध्यान जाएगा तो सरकार के ऊपर दबाव आएगा कि भाई आप फुटपाथ बनवाइए, सबके ऊपर पेवर डलवाइए, और लूज मिट्टी सड़कों के पास उतनी ना मिले, पर वो काम बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो वो कौन करेगा? तो हो सकता है उसको भटकाने के लिए भी पटाखों को एक मोहरा बनाया जा रहा है। तो आप जैसे सोल्यूशन की बात कह रहे थे, सोल्यूशन भी यही होगा भाई, जो मुख्य कारण है, जो प्रदूषण के लिए 30 से 60% तक के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि व्हीकुलर एमिशंस और अदर्स, उसको आप टारगेट करिए। आप पटाखों के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? और इसमें एक बात अगर और जोड़ सकूं, हम व्हीकुलर एमिशन को ही आप अगर ले लें, तो व्हीकुलर एमिशन से पोल्यूशन होता है, और सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है, ये दिल्ली में सारे कोर्ट, कमेटी, सरकार, सबको पता भी है। तो उसको वो कैसे बैलेंस कर रहे हैं? भारत स्टेज 1, 2, 3, 4 से सीधा 6 को जंप कर दिया, स्टेज वाइज कर रहे हैं ना। ये नहीं कि आप गाड़ियों को एकदम बैन कर दिए। तो पटाखों से भी मानिए 0.1% ही होता है, और आपको चलिए जो भी आपकी उसकी ऑब्सेशन हो कि इसको हमको रेगुलेट करना ही है, चलिए आप करिए, उनको टाइम तो दीजिए। जैसे ग्रीन क्रैकर इजाद हुए हैं, उसमें पोल्यूशन जितना भी होता था 0.1 का भी 30% कम हो जाता है। तो आप उसके लिए भी स्टेज लगाइए। पर आप ये क्यों भूल जाते हैं कि पटाखों के पीछे 7 लाख लोगों की जीवनी चलती है, 2000 करोड़ रुपए की शिवकाशी की पूरी इंडस्ट्री है, वो बर्बाद हो रही है। अभी कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया पिछले साल के आप ग्रीन क्रैकर बनाइए, उसके तहत इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद उन्होंने पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और इन्वेस्ट करके ग्रीन क्रैकर्स बनाए और सारे डीलर नेटवर्क को दिया। आप दिवाली के 2-4 दिन पहले आते हैं और कहते हैं कि नहीं, आप पटाखे नहीं बेच सकते, आप अभी पटाखे नहीं जला सकते। क्या होगा? ये पटाखे बंद करने से भले ही कोई इंसान बचे ना बचे, पर पटाखे बंद करने से बहुत से परिवार और लोग बर्बाद हो जाएंगे। हो सकता है खुदा ना खास्ता कोई इस पे कोई गलत कदम ना उठा ले, कोई सुसाइड वगैरह ना करे, पर 2000 करोड़ की इंडस्ट्री को आप विदाउट फैक्ट्स, विदाउट एनी डेटा, ऐसे ही कोई विम्स एंड फैंसी पे कैसे बैन कर सकते हैं, जबकि वो प्रदूषण फैलाता ही नहीं है।
बिल्कुल। अभी आज ही में एक खबर पढ़ रहा था कि अब इंडियन रेलवे ने दरअसल फायर क्रैकर्स को ले जाने के साथ साथ कुछ इनफ्लेमेबल ले जाने के दौरान भी ये पकड़े जाने पर 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान रखा है कि आपको 3 साल की जेल हो सकती है। ये अभी भी आया है, ये नी जर्क रिएक्शन है। लेकिन जैसा बात इन्होंने विरेश मलिक ने कहा था कि ये सब तमाम चीज़ें होती हैं इसके पीछे, ठीक है, माना, लेकिन एक कॉमन मैन की क्या मतलब कहना चाहिए, उनकी इग्नोरेंस, नाइविटी इज ऑल्सो ए रीज़न कि वो भी क्या मान लेते हैं कि हाँ पॉल्यूशन तो हो रहा है, हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट यही कर सकते हैं कि हम फायर क्रैकर ना जलाएं। स्कूलों में बच्चों को बता दिया जाता है, दे बिकम लाइक ए एक्टिविस्ट, दे प्रेशराइज देयर पेरेंट्स कि हम नहीं जलाएंगे। ये भी एक तरह का बड़ा एक वो है। आशीष जी, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको बताऊं। ये जैसे ही पिटीशन फाइल हुई थी 2015 में, उसकी फर्स्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया सरकार को कि वे स्कूलों में ये सिखाएं कि पटाखे बहुत प्रदूषण फैलाते हैं, पटाखे नहीं जलाना चाहिए, और दिवाली इतना प्रदूषण करती है, जो भी है। तो ये बाजब्ता सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से और पूरे में सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश से हर स्कूल में हर बच्चे को हर कक्षा में बताया गया है कि पटाखे प्रदूषण करते हैं। अब आप बताइए, जब स्कूल में बच्चों को टीचरें बताएंगी कि पटाखे प्रदूषण करते हैं, उसके ऊपर उनको ऐसे लिखवाए जाएंगे, और वो अगर कहते हैं कि प्रदूषण करते हैं तब उनको पूरे नंबर दिए जाएंगे, तो समाज में ये तो और फैलेगा ही। एक इंटरेस्टिंग चीज और ये है, 2015 में कोर्ट ने कह दिया कि आप सारे देश में प्रचार करिए, मीडिया में पैसा खर्चा करिए, ऐड दीजिए, स्कूल में सिखाइए। और 2018 में यही कोर्ट फिर पलट के कहता है कि साहब देखिए, स्कूल में भी बच्चे बोल रहे हैं कि पटाखे प्रदूषण करते हैं, हर जगह देश में लोग बोल रहे हैं कि पटाखे प्रदूषण करते हैं, तो मतलब तो पटाखे प्रदूषण करते ही होंगे, वरना इतना प्रचार क्यों होता। तो इट इज अ काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड क्रिएटिंग योर ओन एविडेंस। भाई साहब, आपके आदेश से हुआ है ये प्रचार, अब आप उस प्रचार को कैसे सबूत बना सकते हैं कि ये देश में ये मंशा है कि पटाखे बैन किए जाए? ये बहुत गलत बात है, इसके बारे में भी सबको पता चलना चाहिए। तो मैं जनता को इसके लिए दोष नहीं दूंगा, इसको दोष दूंगा या तो सुप्रीम कोर्ट को, या हमारे जितने बुद्धिजीवी आज मीडिया में बैठे हैं। पिछले 5 साल से ये केस चल रहा है, किसी ने एक बंदे को लगाया नहीं कि आप ये रिसर्च करके निकालिए कि इसके तथ्य क्या हैं। सबने बस मान लिया, हाँ पटाखे आप फोड़ते हैं तो दिखता है थोड़ा धुआं, बस वो काफी है। ऐसे नहीं होता, आपको इसको साइंटिफिकली स्टडी करके प्रूव करना पड़ेगा कि भाई इससे कितना प्रदूषण बढ़ रहा है। मैं इस पे एक सवाल और आपसे पूछूंगा, लेकिन ये उद्देश्य भी हमारा दरअसल यही था आज की, हम ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को समझें कि जो पॉल्यूशन दिल्ली और एनसीआर और जो उत्तर भारत में होता है, उसके पीछे का मेन वजह क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं और वो फैक्टर्स क्यों पैदा हो रहे हैं, और क्या उसकी तरफ हम जाते दिखाई दे रहे हैं। वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात हो, एनजीटी की बात हो, गवर्नमेंट की बात हो, क्या वो पूरी तह में जाकर इस पूरे प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। और इसीलिए हमने अपने 3 डोमेन एक्सपर्ट को बुलाया है। मैं विरेश मलिक के पास जाऊं, उससे पहले एक कोशिश और अरविंद कुमार से। अरविंद, क्या मैं अगर ये कहूं कि अगर वो पैटर्न दोबारा लौटे, मतलब जो धान को रोकने का, धान को जो पैदा करने का, वो उससे क्या हो सकता है? अभी पता लग रहा है कि अरविंद कुमार इज नॉट विद अस, टेक्निकल प्रॉब्लम इज परसिस्टिंग। विरेश मलिक, ये आपने सुना, कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव पे आप क्या कहना चाहते हो? क्योंकि उनको भी बड़ा वो बनाया जाता है हथियार के तौर पर, और वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस, मतलब एक कमिटमेंट के साथ आते हैं। वो घर के बच्चे हो सकते हैं और लोग हो सकते हैं, वो कहते हैं हाँ इससे प्रॉब्लम होता है, इसको बंद कर देना चाहिए। साहब, 50 साल की वर्क एक्सपीरियंस में ना 2 साल मैंने राज्य में भी काटे। एक कैबिनेट मिनिस्टर का मैं पर्सनल असिस्टेंट था। उन्होंने मेरे को एक बड़ी अच्छी चीज सिखाई थी। उन्होंने कहा था, जब भी कोई बोले ना व्हाट अबाउट द पुअर या व्हाट अबाउट द कॉमन मैन, तो वहां से दौड़ो, बहुत जोर से दौड़ो, क्योंकि किसी को कॉमन मैन की या पुअर की फिक्र नहीं है। कॉमन मैन या पुअर आदमी जो है ना, वो 50 रुपए से ज्यादा के पटाखे खरीदता नहीं अपने परिवार के लिए। हो सके तो सड़क पे जो लाल रंग के छर्रे फटे हुए होते हैं ना, उनमें 10% जो फटते नहीं वही घर ले जाता है। तो कॉमन मैन की तो आपने एक एंटरटेनमेंट, मेला, फेस्टिवल छीन ली और फिर बोला घर में बैठो टीवी देखो। ठीक है जी। की बात है कि अब ये कंपैरिजन थोड़ा
डिफिकल्ट है। लेकिन जब इंडिया में मिल्क रेवोल्यूशन हुआ था ना, वो भी मेरे परिवार के सदस्य थे उसमें, Okay. तो बड़ी रेजिस्टेंस आई थी बाहर के देशों से कि अगर ये देश आगे निकल गया तो समस्या हो जाएगी। वो तो हिस्ट्री है। फायर क्रैकर्स में जो आपने कहा ना, कैरेज ऑफ फायर क्रैकर्स इज बैंड बाय इन पैसेंजर ट्रेन्स। रेलवेज बहुत कमाती है, कंटेनर फायर क्रैकर ले जाती है, Right. सी पोर्ट पे ले जाती है, वहां से जहाज पे जाता है। मैंने भी हजार्डस और डेंजरस गुड्स कैरी किए हुए हैं, तगड़े कानून होते हैं। इंडिया फायर क्रैकर एक्सप्लोजिव में बहुत तरीके से आगे बढ़ रहा है, ठीक है जी। काफी सारे देश इससे घबराए हुए हैं, तो क्या करें, जड़ काट दो। कौन सी जड़? जड़ है आतिशबाजी। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर भी समझा रहा हूं। आतिशबाजी इज द रूट ऑफ एक्सप्लोजिव्स एंड एक्सप्लोजिव्स इज द रूट ऑफ प्रॉपर इंटरनल एंड ज्यादा करके एक्सटर्नल सिक्योरिटी। वो जो रॉकेट जा रहा है ना आसमान पे, वो भी आतिशबाजी ही है। ठीक बात। तो आपने उसका जड़ी काट दिया। आपने जो लोग ग्राउंड लेवल पे समझते थे, हमारा प्रेसिडेंट था सर, किस गांव से आया था, कैसे बन गया था, वो उसकी कहानी तो सबको पता है। रामेश्वरम से आए थे प्रेसिडेंट साहब हमारे। तो सिमिलरली आतिशबाजी को काटने से हमारी टेक्नोलॉजी को, हमारे देश को बड़ा तोड़ा जा रहा है। दूसरा, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की तो मैंने बात कर ली। अब मैं बात करूं सिंगल और पोल्यूशन इन नॉर्थ इंडिया पे, थोड़ा काफी कुछ मैंने भी देखा है। एग्रीकल्चर की बात हो गई, बायोडाइवर्सिटी पंजाब में ना खत्म हो गई है। दो ही क्रॉप में, पैडी वीट पैडी। आज से 50 साल पहले ना वहां कणक उगती थी, ना वहां धान, बाजरा, रागी, चलो रागी नहीं उगता था शायद, कोर्स ग्रेन्स जिसको कहते हैं, सब्जियां उग रही थी, दालें उग रही थी। आप मध्य प्रदेश से कंपेयर करिए, अगर मैप ऑफ इंडिया लीजिए तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है? अभी धान उग रही, चावल उग रहा है, लेकिन साथ में सब्जी भी उग रही है, साथ में पेड़ भी उग रहे हैं, साथ में जिसको इंग्लिश में कोपीसिंग कहते हैं और हिंदी में गुलाम वन कहते हैं, कि अगर आपका जंगल है 20 साल में उगता है तो हर साल 5% पेड़ काट के उनको छोड़ा जाता है ट्रंक तक, 1 मीटर 2 मीटर, ताकि वो पेड़ फिर से उगे। यहाँ पे नॉर्थ में हमने प्रूनिंग ही कैंसिल कर दी। तो कारण बहुत सारे हैं, कमर्शियल हैं, स्टुपिडिटी, और सबसे बड़ा कारण यह है कि जो कहते हैं ना इंग्लिश में द बिग एलिफेंट इन द रूम, सबसे बड़ा कारण यह कि जो असली कारण है ना पोल्यूशन के, उनको हम एड्रेस नहीं कर रहे, और वो बहुत ज्यादा है। सिर्फ मेरे घर के पीछे जो बिल्डर है वही नहीं है, मेनी रीजंस। Okay. So Ashish, can I say that this study by IIT Kanpur, which you also mentioned, ki kind of a chemical analysis by the IIT Kanpur to identify the source of all PM. It found that it did not even have a list of the fireworks as a contributor of any significance. So can we say that this case against fireworks on the count of pollution falls flat on its face, with no merit? Absolutely, because आप देखिए इसमें, क्योंकि जनता सुनेगी है, तो एक चीज और बारीक चीज इसमें बताऊं कि जब लोग कहते हैं कि पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है पटाखे की वजह से, सबसे जरूरी और अहम सवाल और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। जैसे PM10, PM 2.5 तो आजकल हर एक की जबान पे चढ़ गया है, बट एक प्रश्न कोई नहीं पूछता, वो ये है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फायरवर्क्स कंट्रीब्यूशन टू दिस PM 2.5 और PM10। अगर आप परसेंटेज पे जाएंगे, स्पेसिफिक्स पे जाएंगे, तो ये बात खुल के आ जाएगी कि भाई इट इज इनसिग्निफिकेंट। बट कोई परसेंटेज और स्पेसिफिक्स नंबर्स पे नहीं जाता, सब खाली वो पटाखों से निकला हुआ धुआं देख के कहते हैं कि भाई देखो कितना पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो इस बात को समझना और बताना जरूरी है कि यू हैव टू लुक एट द परसेंटेज। एक बात और जनता ये जान ले कि साइंटिस्ट IIT कानपुर हो या और 3-4 जो स्टडी और हुई हैं, वो ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रदूषण किस सोर्स से कितना आ रहा है। हाउ इज इट दैट दे आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट क्रैकर्स आर कॉजिंग इनसिग्निफिकेंट पोल्यूशन? नाउ द मेथड इज वेरी सिंपल। पार्टिकुलेट मैटर जब इक्विपमेंट में कैप्चर होता है, उसका केमिकल एनालिसिस किया जाता है। तो केमिकल एनालिसिस में उसका सोर्स क्या है वो साफ निकल के आ जाएगा। अगर उस केमिकल एनालिसिस में आप समझिए सिलिका ज्यादा आया, तो इसका मतलब है ये रोड पे, सड़क पे पड़ी हुई मिट्टी है। अगर उसमें फ्लाई ऐश ज्यादा आया, तो आप समझिए ये थर्मल पावर प्लांट से जो कोल का ऐश निकल रहा है, जिसको कि फ्लाई ऐश कहते हैं, तो ये फ्लाई ऐश है। तो वैसे ही पटाखों को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और आइडेंटिफाई
करके बताया गया है कि इट इज वेरी नेग्लिजिबल. सो देर एंड मानिए, जैसे मैंने कहा, ये आईआईटी की अकेले की स्टडी नहीं है, इसके साथ और 4 स्टडी हो चुकी है 2016 से 2018 के बीच में, और चारों की चारों स्टडी ने इसको यही बताया है कि फायरवर्क्स कंट्रीब्यूशन इज नेग्लिजिबल. और ये जो मैं बोल रहा था परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, इसके लिए एनवायरमेंटल स्टडीज में कल ही मुझे जो साइंटिस्ट ने मेल भेजाया, दे हैव अ स्पेसिफिक टर्म व्हिच दे कॉल्ड सोर्स अपॉर्शनमेंट, कि जो व्हाटएवर द पोल्यूशन व्हिच इज बीइंग कॉज्ड, how do we apportion or divide it into which source is causing how much? So there is so much exact and scientific data available, all of which says that crackers are an insignificant contributor to pollution. Okay. So one can say at the end that in fact the Honorable Supreme Court which formed the committee to form to look into the effect of the pollution during the Diwali on human health after a comprehensive study found no adverse effect on the human health and due to the firecrackers, and the report of this committee however was misinterpreted, as Ashish told to us and to our viewer, as one which reported great damage to the health due to the misunderstanding of this concept. These agencies and Honorable Supreme Court can also examine the causes of air pollution by going the chemical analysis, and that can be done. But ये नहीं हुआ, और इसके पीछे जिस तरह की स्थिति हुई, जल्दी से आखिर में हम ये बता दें कि 2 मेन कारण बताए जाते हैं. एक है कि दिवाली में फायर क्रैकर्स यानी पटाखों के जलाने से स्थिति होती है, लेकिन ऐसा नहीं निकला है. ये अब स्टडी सामने है. ज़रूरत इस बात को है कि हम और आप समझें कि इसके पीछे का दरअसल एजेंडा क्या है, इसके पीछे की एक मंशा क्या है, और सारा ब्लेम दरअसल सिर्फ पटाखों को या फिर पंजाब के किसानों को. पंजाब के किसानों पर एक बार फिर संक्षेप में, जो कि अरविंद कुमार के उस आर्टिकल में है, आप जाकर इंटरनेट के जरिए इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं. ये बड़ा अपने आप में कॉम्प्रेहेंसिव है कि 2007 से पहले ये फिनोमेना नहीं था, जबकि पंजाब के किसान का खेती का पैटर्न अलग होता था. वो धान पहले उगाते थे जिनकी कटाई अगस्त या सितंबर तक महीने में हो जाती थी, और उसके बाद जब वो पराली को जलाते थे तो धुआं निकल जाता था. लेकिन हवाओं का पैटर्न चूंकि अक्टूबर नवंबर में दूसरी तरफ होता है, लिहाजा उसको ले जाकर उसको डिले करने के पीछे मंशा क्या है. कपास को उगाने की बात मॉन्सून के द्वारा प्रायोजित उस कानून में कही जाती है, लेकिन कपास को उगाने के लिए 1 किलो कपास के लिए 10,000 लीटर पानी लगता है, लेकिन जबकि धान को उगाने के लिए 2,500 लीटर पानी लगता है. लेकिन लिहाजा वो दलील कि ग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है अपने आप में ठहरता नहीं है. इसके पीछे भी हमें दरअसल मॉन्सेंटो या इस तरह के तमाम कॉरपोरेट्स के अपने एजेंडे को समझना होगा, क्योंकि ये हमारी अपनी पहचान, हमारे अपने त्योहारों, अपने धार्मिक रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ मसला है. लिहाजा हम ज़्यादातर इस मामले में चुप हो जाते हैं, और हमारी अज्ञानता ही हमारे लिए बाधक बनती है. हमारी ये पूरी कोशिश दरअसल इस बात को समझने की थी. आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए. मिस्टर वीरेश मलिक, थैंक यू वेरी मच. इंडीड अ प्लेजर टू हैव यू इन द शो. I appreciate that you both took us time. Mr. Arvind Kumar, who joined us from US, had some problem in the audio and visual, but he spoke to us about his article, his findings, and he clearly mentioned that firecrackers has a little impact, and in fact no impact on the causes of air pollution in northern parts of India. That's all we have in this edition of Public Forum. Thank you very much for watching.